Good morning, students. Today we are going to start third chapter of geography, that is natural vegetation and wildlife. In this chapter we are going to study about forest resources, about the types of forest, and also about protected natural resources, wildlife, and conservation of forests. Okay, so in detail we are going to study all these topics in this chapter. So let's start. As we have already studied in the previous chapter regarding that nature, what is land resources, water resources, and soil resources. So basically different resources are having different values, and all of them are important for us, and without them we cannot survive. So if we talk about the spheres of the earth, biosphere is only zone where life exists because it supports life supporting features. Here exists an ecosystem on the earth which support life in the biosphere. So all the living beings are interrelated and they are interdependent on each other. Basically, if we talk about plants, plant provide us food, timber, firewood, medicine, herbs, pulp, oil, gum, latex, and most importantly paper that help in our studies. The paper what we are using for writing purpose, the paper on which our books are being imprinted, all the paper we are getting from the uh, plants. Okay, so if we talk about wildlife, it includes insects, creepers, birds, and both kind of domestic and wild animals, and also all kind of aquatic animal like fish, alligator, frogs, jellyfish, etc. So animals, what animal do is that they provide us milk to drink, meat to eat, wool to wear, etc. So both plants and animals helps us in maintaining the balance, and it also helps in maintaining the balance in the ecosystem, and they are equally important. जैसा कि हमने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, सॉयल रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज और वाटर रिसोर्सेज के बारे में, डिफरेंट रिसोर्सेज की डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, सारे इंपॉर्टेंट होते हैं और इनके बिना हमारा सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा. अगर हम अर्थ के सारे स्फीयर्स की बात करें तो ओनली बायोस्फीयर इज़ द वन जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ये लाइफ सपोर्टिंग फीचर्स को सपोर्ट करता है. एक इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है बायोस्फीयर में अर्थ पे, जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है. जितने भी लिविंग बीइंग हैं वो सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स हमें फूड, टिम्बर, फायरवुड, मेडिसिन, हर्ब, पल्प, ऑयल, गम, लेटेक्स एंड बहुत सारे चीज़ें देता है. एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो वो हमें पेपर देता है जो हमारी स्टडीज़ में हमारी हेल्प करता है, इस पर हम लिखते हैं. वाइल्ड लाइफ में आपके इंसेक्ट्स, क्रीपर्स, बर्ड्स और बोथ डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल्स आ जाते हैं, और साथ ही साथ जितने भी एक्वेटिक एनिमल है जैसे कि फ़िश है, एलिगेटर है, फ्रॉग, जेलीफिश एक्सेट्रा, ये सारे हमारे वाइल्ड लाइफ में आते हैं. एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल्स हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं, मीट और वूल प्रोवाइड करते हैं. दोनों प्लांट और एनिमल जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं जिससे कि इकोसिस्टम का जो बैलेंस है वो मेंटेन हो सके. ठीक है. फॉरेस्ट रिसोर्सेज. The term forest refers to natural vegetation of trees that grow close together over a large area. You know that plants and trees that grow naturally without the help of humans is natural vegetation. हमें पता है कि वो प्लांट्स और ट्रीज़ जो कि नेचुरली अपने आप ग्रो हो जाते हैं बिना ह्यूमंस की हेल्प के, उन्हें हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं. जो टर्म है फॉरेस्ट, इसका मतलब क्या होता है कि नेचुरल वेजिटेशन ट्रीज़ का जो कि एक दूसरे के करीब में ग्रो होते हैं एक लार्ज एरिया में. ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट बोलते हैं, जो बिना किसी ह्यूमन हेल्प के अपने आप नेचुरली ग्रो हो जाते हैं. Today, much of the original natural vegetation has been removed to make way for buildings, roads, and agriculture. Much of it has also been destroyed by natural forces such as storms or fires. At present, most of the remaining original natural vegetation can be seen only in the equatorial regions and in mountain areas in the temperate and arctic zone. आज आपको पता है कि नेचुरल वेजिटेशन, जो ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन है, उसको रिमूव किया जा रहा है जिससे कि बिल्डिंग्स बना सकें, हम रोड्स बना सकें, एग्रीकल्चर कर सकें. तो ज़्यादातर जो है कुछ जो है नेचुरल फोर्सेस की वजह से भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, जैसे स्टॉर्म्स हो गए या फिर फायर की वजह से. अभी करेंटली जो है कुछ मंथ्स पहले अमेज़ॉन के जंगलों में आग लगी थी, और ऐसे भी कभी लग जाती है फायर, जिसकी वजह से जो है हमारे जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज होते हैं वो क्या बोलते हैं, वो
किसी ना किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस टाइम पे जो रिमेनिंग ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन है वो सिर्फ आपको इक्वेटोरियल रीजन्स में देखने को मिलेगा या फिर माउंटेन एरियाज़ में जहाँ पे टेम्परेट और आर्कटिक जोन्स होते हैं। Now the question which arises is how have humans changed the forest pattern of the world? Because most of the land under human control, it is used for agriculture, animal grazing and urbanization. Some parts of the existing natural vegetation is also controlled by humans such as natural reserves and national parks. सो क्वेश्चन ये आता है कि ह्यूमंस ने फॉरेस्ट पैटर्न को कैसे चेंज किया है। ज़्यादातर जो लैंड है जो ह्यूमन के कंट्रोल में है वो एग्रीकल्चर, एनिमल ग्रेजिंग या फिर अर्बनाइजेशन के लिए यूज़ हुआ जाता है यूज़ किया जाता है। कुछ पार्ट जो है जिसमें एग्जिस्टिंग नेचुरल वेजिटेशन है वो भी जो है वो ह्यूमंस कंट्रोल कर रहे हैं। कैसे? उसको नेचुरल रिजर्व्स या फिर नेचुरल पार्क्स के फॉर्म में जो है उसको यूज़ कर रहे हैं। ओके, humans have also modified the existing plant cover by moving certain species from their original habitat to other parts of the world. The most common example is the eucalyptus tree that was taken from Australia and planted in places as far off as the US, California, North Africa, and India. The growth of vegetation depends on temperature and moisture. Forests, grasslands, shrubs, and tundra are major vegetation type in the world. Natural vegetation comes in many sizes, shapes, and types. Besides trees, you also find shrubs, vines, and scrubs. Apart from this, the lowest layer in the ground cover, such as moss or lichen, each of these categories also has many types. ह्यूमंस जो हैं उन्होंने प्लांट कवर को मॉडिफाई किया है। जो एग्जिस्टिंग प्लांट कवर है उनको मूव किया है, जो उसकी सर्टेन स्पीशीज़ है उसको ओरिजिनल हैबिटेट से दुनिया के अदर पार्ट में, मतलब वर्ल्ड के अदर पार्ट में जो है वो उसको मूव किया है। जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है उसका वो यूकेलिप्टस ट्री है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से निकाल करके जो उसको प्लांट किया गया था दूर दूर के इलाकों में, जैसे कि यूएस, कैलिफोर्निया, नॉर्थ अफ्रीका और इंडिया। जो ग्रोथ और वेजिटेशन है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर और मॉइस्चर पे। फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, श्रब और टुंड्रा ये जो है मेजर वेजिटेशन टाइप है वर्ल्ड के। और जो नेचुरल वेजिटेशन होता है ये बहुत डिफरेंट साइजेस, शेप्स और टाइप्स में आता है। ट्रीज़ के अलावा जो है हमें श्रब्स, वाइन्स और स्क्रब्स भी मिलते हैं। और इन सब के अलावा जो लोएस्ट लेयर होती है वो ग्राउंड कवर होती है, जैसे कि मॉस और लिचन। ये इन सारी कैटेगरीज़ के भी जो है वो डिफरेंट टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट होते हैं। बेसिकली 3 मेन टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो क्लाइमेट, सॉइल, एल्टीट्यूड, सनलाइट और लोकेशन ये डिटरमाइन करता है कि फॉरेस्ट का टाइप क्या होगा। जनरली फॉरेस्ट जो है वहाँ पे पाया जाता है जहाँ पे एबेंडेंट वाटर सप्लाई हो। सो मॉइस्ट क्लाइमेट जहाँ पे एटलीस्ट 1 वार्म सीजन हो, ये फॉरेस्ट को सपोर्ट करता है। फॉरेस्ट को फर्दर क्लासीफाई आप कर सकते हो एवरग्रीन या फिर डेसिडुअस फॉरेस्ट में। एवरग्रीन ट्रीज़ जो है वो अपनी लीव्स को थ्रू आउट द ईयर रिटेन करके रखते हैं, मीन्स अपनी लीव्स को शेड नहीं करते हैं। और जो डेसिडुअस ट्रीज़ होते हैं वो अपनी लीव्स को एक सर्टेन सीज़न में हर साल जो है अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं। उसके बाद उनके ट्रीज़ पे न्यू लीव ग्रो करती है। ओके, हियर यू कैन सी सम मेजर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट अराउंड द वर्ल्ड। Here tundra forest, tropical rain forest, subtropical forest, Mediterranean forest, woodlands and scrub biome, temperate forest, montane forest or cloud forest, and boreal or taiga forest. All the forest types are given over here, and these are found in the regions which are mentioned over here. Okay. Tropical forests. Tropical forests are found between 23 degree north and 23 degree south latitudes. Some of the forests here are evergreen while others are deciduous. The tropical evergreen forests are found where the annual rainfall is very heavy and temperatures are high throughout the years. These are generally found closer to the equator and are also called tropical rainforests. These forests are dense and have a thick canopy that hardly allows any sunlight to reach the lower layers. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है वो 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ लैटीट्यूड्स में पाए जाते हैं। इनके जो फॉरेस्ट हैं इसमें से कुछ फॉरेस्ट वो एवरग्रीन होते हैं और कुछ जो है वो डेसिडुअस होते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो वहाँ पे पाया जाता है जहाँ पे एनुअल रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो और जो टेम्परेचर है वो हाई होता है थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, पूरे साल भर टेम्परेचर हाई रहता है। ये जनरली जो है इक्वेटर के क्लोज वहाँ पे पाए जाते हैं और इन्हें हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं।
ये फॉरेस्ट काफ़ी घने मतलब डेंस होते हैं, इनके पास एक थिक कैनोपी होता है और ये हार्डली अलाउ करता है कि कोई भी सनलाइट जो है वो लोअर लेयर मीन्स ज़मीन तक सनलाइट बहुत ही हार्डली पहुंच पाती है। Rosewood, mahogany, cinchona, and ebony are some of the commonly found trees in tropical evergreen forests. The tropical deciduous forests are found in areas with lesser rainfall and a hot climate. These forests are commonly called monsoon forests. These are open forests and the trees are not very tall. As sunlight reaches the lower layers, there is a good growth of shrubs and bushes. Teak, sal, shisham, and bamboo are the commonly found trees in tropical deciduous forest. रोज़वुड, माहोगेनी, सिनकोना और इबोनी जो है कुछ कॉमनली फाउंड ट्रीज़ हैं जो कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है वो उन एरियाज़ में पाया जाता है जहाँ पे रेनफॉल कम होती है और क्लाइमेट वहाँ का बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, ये फॉरेस्ट कॉमनली मानसून फॉरेस्ट कहलाते हैं। ये ओपन फॉरेस्ट होते हैं, उनके ट्रीज़ जो है बहुत ज़्यादा टॉल नहीं होते हैं। सनलाइट जो है वो लोअर लेयर तक पहुँचती है और इसीलिए एक अच्छी गुड ग्रोथ होती है श्रब्स और बुशेस की। टीक, साल, शीशम और बैम्बू ये जो कॉमनली फाउंड ट्रीज हैं जो कि ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। इन इंडिया द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स parts of West Bengal, along the Western Ghats and in the Andaman and Nicobar Island. The tropical deciduous forests are found almost all over India along the eastern slopes of the Western Ghats, northeastern parts of the Peninsular Plateau, foothills of the Himalayas and the eastern parts of the northern plains. इंडिया में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मतलब कुछ पार्ट वेस्ट बंगाल के जहाँ वेस्टर्न घाट के अलॉन्ग में और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे पाया जाता है। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है वो ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में पाया जाता है और अलॉन्ग द ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट वहाँ पे भी पाया जाता है और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है पेनिनसुलर प्लेटू का वहाँ पे भी पाया जाता है। फुट हिल्स जो हैं हिमालयाज़ के और ईस्टर्न पार्ट नॉर्दर्न प्लेन्स के, इन सारी जगहों पे जो है वो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। टेम्परेट फॉरेस्ट These are found in the mid latitudes between 30 degree and 50 degree latitudes, both north and south of the equator. Here again you will find both evergreen and deciduous forests. The temperate evergreen forests are found in areas with mild winters and abundant rainfall throughout the year. Basically, temperate forests are generally of two types, broadleaf and needleleaf. The broadleaf evergreen forests have medium-sized trees with small leathery leaves such as evergreen oaks, laurels and magnolia. The needle-leaf evergreen forests are found only in southeastern US and consist of mainly pine trees. The temperate deciduous forests are found in areas with wet summers and cool frosty winters. The trees are broadleaf with a dense canopy in summer and shed their leaves in winter. The main trees are birch, beech, ash, elm and maple. These forests are found almost entirely in the northern hemisphere. टेम्परेट फॉरेस्ट जो है वो मिड लैटीट्यूड में 30 डिग्री टू 50 डिग्री लैटीट्यूड में बोथ नॉर्थ और साउथ जो इक्वेटर के वहाँ पे पाया जाता है। अगेन जो है यहाँ पे आपको दोनों तरीके के मतलब एवरग्रीन और डेसिडुअस दोनों फॉरेस्ट मिलेंगे। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो उन एरियाज़ में पाया जाता है जहाँ पे माइल्ड विंटर्स होती है और एबेंडेंट रेनफॉल होती है थ्रू आउट द ईयर। ये टेम्परेट फॉरेस्ट जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, ब्रॉड लीफ और नीडल लीफ। जो ब्रॉड लीफ एवरग्रीन फॉरेस्ट है उनकी मीडियम साइज ट्रीज़ होते हैं जिनकी स्मॉल लेदरी लीव्स होते हैं जैसे कि एवरग्रीन ओक, लॉरेल्स और मंगोलिया। नीडल लीफ एवरग्रीन फॉरेस्ट वहाँ पे पाया जाता है मतलब ये पाया जाता है साउथ ईस्टर्न यूएस और बेसिकली इसमें सिर्फ पाइन ट्रीज़ मतलब मेनली पाइन ट्रीज़ होते हैं। टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट आपके उन एरियाज़ में पाए जाते हैं जहाँ पे वेट समर्स होते हैं और कूल फ्रॉस्टी विंटर्स होते हैं। जो ट्रीज़ होते हैं उनकी लीव्स काफ़ी मतलब इनकी ब्रॉड लीफ होती है जिसमें एक डेंस कैनोपी होती है समर में और ये अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं विंटर में। जो मेन ट्रीज़ हैं उसके वो हैं बर्च, बीच, ऐश, एल्म और मैपल। ये फॉरेस्ट जो है ऑलमोस्ट एंटायरली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पाए जाते हैं। टाइगर फॉरेस्ट These forests are found between 50 degree and 70 degree latitudes in Eurasia and also in North America, where they are referred to as boreal forests. They are also found on mountains in the lower altitudes.
These are evergreen coniferous forests with cone-shaped trees that have straight trunks and small narrow needle-like leaves. Red pine, white pine, spruce, firs, and larches are the main trees found in these forests. In India, coniferous forests are found on the higher slopes of the Himalaya in Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand and Arunachal Pradesh. टाइगर फॉरेस्ट जो है ये पाए जाते हैं 50 डिग्री और 70 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका में, जहाँ पे इन्हें हम बोरियल फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये माउंटेन्स पे पाए जाते हैं लोअर एल्टीट्यूड में, मतलब वहाँ पे भी पाए जाते हैं माउंटेन्स पे लोअर एल्टीट्यूड पे। ये एवरग्रीन कोनीफेरस फॉरेस्ट होते हैं जिनके जो ट्रीज़ होते हैं वो कोन शेप के होते हैं और जिनका स्ट्रेट ट्रंक होता है और स्मॉल नीडल लाइक लीव्स होती हैं। रेड पाइन, वाइट पाइन, स्प्रूस, फिर्स और लार्चेस जो है वो मेन ट्रीज़ है जो कि इन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। इंडिया में कोनीफेरस फॉरेस्ट जो है वो हायर स्लोप्स हिमालयाज़ के कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू।